Hello, everyone. I welcome you all to this session organized by the Youth of India. And I'm Ruchika Agarwal, a practicing advocate. And on behalf of Youth of India, I will be moderating this session for today. So let me start by telling you something about this organization. It is an organization that has been started by a group of individuals based out of Siliguri, West Bengal in 2015. And they have, through their innovative and successful campaigns for the betterment of the nation internationally and nationally, they have come a long way. And they are one of the 174 organizations in the world which has been given special accreditation by the United Nations. Their presence is in 15 countries and 12 states. So this session, the theme of today's session is COVID-19, the way forward. Now, as you all know, that the coronavirus disease or the COVID-19 is not just a health crisis anymore. It has gone beyond that. It has changed the world as we know it. It has social, economic, political impacts across the globe. And every country has a different response to it, has reacted different to it based on their socio-political and economic conditions. So it is a very challenging task that is today faced by major countries of the world. And the closest that we've come to such a crisis has been very few, probably the Ebola outbreak or the Spanish influenza, or we can even think about the Great Depression. But the coronavirus, the situation of coronavirus is such that it has crossed all these records. And today we as a nation or as the world or as a human race are faced with this challenge of tackling it and paving the way forward. In such a scenario, it becomes very, very important that whatever reforms or recovery methods or whatever policies that come today, that is not just temporary. वो बस अभी के लिए नहीं होना चाहिए, because WHO ने भी जैसे कहा है कि COVID-19 हमारे साथ रहने वाला है. It's going to be there. We have to learn to live with it. तो we have to link the present to the future. Sustainable development को सोचते हुए, long term sustainability को सोचते हुए हमारी policies आनी चाहिए. मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने इस विषय में दिया है 5 पिलर्स ऑफ रिस्पॉन्स कि क्या क्या चीज को सोचकर एक कंट्री को रिस्पॉन्स देना चाहिए. सो द फर्स्ट इज हेल्थ. Obviously, the health infrastructure or the health services should be protected first. Second is social protection. Social protection is livelihood or basic jobs, services, electricity. These should not be compromised while bringing out any reforms. Second is economic response at a micro level and macro level, providing jobs, or like in India, we have the issue of the migrant workers or industrial foreign investments, or should it be Make in India campaign, such kind of things. And also, lastly, but the most important is social cohesion, the inclusivity of everyone. The role of every individual becomes very, very important in such a scenario. And that is why it is very important that the youth of this country come together through dialogue and contribute to every organization on the international, national, or subnational, or even at a local level. Today, even the role of every individual is very important in paving the way forward. And that is why we have come together for this session. So today we have with us Mr. Shakti Singh, who has been the Delhi University Student Union President for the year 2018 to 19. He has done his BCom, he has done his graduation in BCom from MIT Pune and has done his LLB from the Delhi University. He is also a national level gold medalist in boxing and shooting. So we welcome you, Mr. Shakti. And मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि according to you, since you have been such an inspiring youth leader and you have been the president of the Delhi University Student Union, according to you, what is the way forward? आपके क्या विचार हैं इस विषय में? नमस्ते रुचिका, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझको एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं. सुशांत का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आज आवाज मेरी आ रही है? जी जी आ रही है. Great. आज हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया आज इस महामारी को झेल रही है और संघर्ष कर रही है. इसमें हमारी सबसे जो प्रथम जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख पाए,
क्योंकि अगर हम अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अगर हम अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं तो हम समाज को और फिर इसके बाद इस देश को भी सुरक्षित रख पा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस निकाली थी उसमें 5 महत्वपूर्ण चीज है, मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। एक तो आपको मास्क बहुत नेसेसिटी है, आप कहीं भी जाएं तो आप मास्क का उपयोग जरूर करें। दूसरी चीज कि आप किस तरीके से अपने इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इम्यून सिस्टम के लिए आप योग को, जो पूरी दुनिया आज योग की तरफ बहुत आशा से देख रही है, योग चूंकि एक हमारे कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और सदियों से इसको बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन बीते कुछ सालों में जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग को लेकर एक मुहिम चलाई थी, और इस बार हम लोग इंटरनेशनल योगा डे पे हम देख पाए कि पूरी दुनिया, हर देश का एक एक कोने से योग को लेके संदेश हम लोग के सामने आए। तो किस प्रकार से हम अपने जीवन शैली में योगा को ला सकते हैं, साथ में हम ऐसे कौन से फूड्स हैं पूरी जो भी जिससे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को एनहेंस कर सके उसका उपयोग करें। हाइजीन का हमको विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्वच्छता मूवमेंट भी हमारे भारत में बीते कुछ दिनों से चालू हुआ और आज हम देख पा रहे हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो किस प्रकार से हम हाइजीन का ख्याल रख पा रहे हैं। साथ में हमको एक बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको अपने आप की खुद की, अगर हमको कोई भी सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं तो हम टेस्टिंग जरूर कराएं, और टेस्टिंग के साथ साथ हम ट्रेसिंग भी करते रहें कि अगर हम वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं तो हम किससे मिले हैं, किससे इस पूरे दौरान जो कुछ टाइम पीरियड है जो कि अराउंड 10 to 15 डेज का है, इस दौरान हम अगर किससे मिले हैं तो उसकी भी जानकारी हम सरकार को जरूर दें। और गवर्नमेंट को हम बिना, अगर हमें कोई भी सिम्टम्स अगर नजर आता है तो हमारे पास हेल्पलाइन नंबर हमको दी है गवर्नमेंट ने, हमको तुरंत फोन करना चाहिए, क्योंकि जितने कम से कम लोग इससे इन्फेक्टेड होंगे उतना ही सरकार के लिए भी बहुत ये अच्छा रहेगा। और सरकार हमेशा से, गवर्नमेंट ने इसका प्रयास किया है कि कम से कम लोग इन्फेक्टेड हो, और काफी दिनों तक हम जानते हैं कि करीब 3 महीने तक लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी लगाया, लेकिन जो 5 स्तंभ में जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है उसके लिए कहीं ना कहीं हमको लॉकडाउन खोलना पड़ा। और आज हमको अपनी खुद की जिम्मेदारी, और हम अगर अपनी खुद की भी जिम्मेदारी अगर अच्छे से निभा पाते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा इस देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। विषय है कि आज इस महामारी में भी हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या ऐसा योगदान दे सकते हैं जिससे कि इस देश के साथ साथ दुनिया में और भी देशों का भला हो सके। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आत्मनिर्भर भारत नाम की मुहिम चलाई है, जो कि जिसको मुहिम का नाम दिया गया है, एक अभियान, आत्मनिर्भर अभियान दिया गया है, क्योंकि सिर्फ इसमें फंड के साथ साथ इसमें प्रमोट भी किया है कि वोकल फॉर लोकल को, किस प्रकार से हम लोग लोकल इंडस्ट्रीज को हम लोग अपलिफ्ट कर सकते हैं। उसमें 5 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक हमारी डेमोग्राफी, एक हमारी इकोनॉमी, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा सिस्टम, और तीसरा किस प्रकार से हम डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मैं इसको 3 वर्गों में मैं बांटना चाहूंगा। एक युवा जो कि अभी अध्ययन कर रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको स्व अध्याय के लिए, उनको खुद में चीजों को इनकलकेट करने के लिए उपयुक्त समय दिया हुआ है। आज उपयुक्त समय मिल पाया है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ कि हम बाहर रहते हैं तो हमको तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।
चाहे वो चाहे रहने की बात हो या खाने पीने की फूड की प्रॉब्लम्स हो। आज हमको स्वाध्याय करने के लिए, खुद में चीजों को इनकलकेट करने के लिए, खुद से चीजों पे विचार विमर्श करने के लिए हमको पर्याप्त समय मिला है। इसको किस तरीके से हम लोग प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं, इसका हमको विशेष कर ध्यान देना है। और एक बहुत बड़ी समस्या भी आ रही है अभी, अभी रिपोर्ट थी बीबीसी पे, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कि इस लॉकडाउन में तमाम स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो मैं उनके लिए कहना जी, चाहूंगा, साइकोलॉजिकल इशू एक बहुत बड़ा इशू है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, स्पेशली यंगस्टर्स में। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से दो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हुए और उन्होंने सुसाइड जैसी चीजें भी अटेम्प्ट की हैं। तो मैं इस पे विशेष करके इस पे ध्यान करना चाहूंगा कि ये समय है खुद को किस प्रकार से सकारात्मक वे में बदलने का। चूंकि आज हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया, सब लोग आज इसमें संघर्षरत है, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हमको इसमें इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से, जो चीज हम काफी समय से ऐसा रहा है कि हम हमेशा से चाहते रहे कि हमको हमारे लिए समय मिले, खुद के लिए हम समय निकाल पाए। लेकिन जिस प्रकार से जो हमारी दिनचर्या थी और जो जो जिस प्रकार से दिनचर्या चल रही थी, इस प्रकार से मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज हम स्वाध्याय के माध्यम से, तमाम ऐसी किताबें हैं जो ऐसे ऐसे फिलोसफर हमारे भारत के इतिहास में भी रहे, जिनकी किताबें हम पढ़ सकते हैं, उससे काफी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा है कि जो उद्यमी लोग हैं, युवा, इसमें शक्ति जी, एक सेकंड, मैं आपने जो बात कही है वो बहुत ही रेलेवेंट है आज के समय पे, जो आपने बात कही है। मुझे आपसे बस ये जानना है कि आप क्योंकि आप स्टूडेंट यूनियन रह चुके हैं, तो अभी जैसे कोविड के कारण सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, जैसे आपको पता है स्कूल कॉलेजेस बंद है और ऑनलाइन क्लासेस। तो फिजिकल प्रेजेंस एक स्टूडेंट का स्कूल जाना और वो इस एक डिसिप्लिन में रहना, स्पेशली प्राइमरी या हाई स्कूल लेवल पर, वो क्या वो सेम एनवायरनमेंट जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हो सकता है? एक ये प्राइमरी और मिडिल स्कूल की बात हो गई। और यूनिवर्सिटी लेवल पर जब लोग अब क्योंकि कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या जो अभी ग्रेजुएट किए हैं इस साल, वो बेरोजगारी महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उन्हें या तो सैलरी नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, या जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसको लेके आगे आपको क्या लगता है कि एज यूथ हमें कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आपका अनुभव कैसा रहा है एज अ यूथ लीडर कि आप कैसे इन यंगस्टर्स को हेल्प कर सकते हैं? जी, फिजिकल प्रेजेंस तो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही है, लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। और आज हम को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस समय पे जब महामारी आई है, तब तक हम लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तमाम हमारे पास माध्यम है। आज हमको किसी भी चीज पे अगर जानना है, समझना है, तो हमारे पास इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है कि हम चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। रही बात कि ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, वो कितने एफिशिएंट है, वो कितनी अच्छे से वो कार्यगर है, किस प्रकार से वो कार्य कर पा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रपोज्ड हुए हैं, कुछ ऐसे हम लोग अभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑनलाइन हमेशा से वो पिछले 30 सालों से 30 सालों से लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए क्लासेस, वो कोचिंग क्लासेस वो कराती थी। लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। और जितना रजिस्ट्रेशन पहले होता था, मुझको आपको बताने में खुशी होगी कि उससे 30% मोर रजिस्ट्रेशन इस आपातकाल में हुआ है। 30% ऐसे भी लोग हैं शायद जिन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला न भी लेना हो, लेकिन अपनी लर्निंग को सीखने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े। और हम रोज सेशन क्लास कर रहे हैं, और लगभग जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराए उसमें से 60 से 70% लोग उस समय पे, जो समय हम निर्धारित करते हैं, उस समय पे वो आते हैं और क्लासेस को
इंटरेक्शन करते हैं, जो भी वर्चुअल इंटरेक्शन है उसको कर रहे हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकली होना तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस समय ऑनलाइन इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी हमको मिली है और इतने हम सक्षम हो पाए, उसका उपयोग आज भी यूथ कर रहा है। और हमको ये देखने को मिला है कि तमाम क्षेत्र से, चाहे वो मिडिल स्कूल की बात हो, हाई स्कूल की बात हो, चाहे वो आईएएस की कोचिंग्स की बात हो, हर जगह यूथ आज कनेक्ट हो रहा है और इंटरनेट के माध्यम से अपनी सेल्फ स्टडी और साथ में अपने कोर्स की स्टडी का लाभ ले पा रहा है। जी जी। दूसरी बात मेरा कहना था कि सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, जो जैसा कि आपने कहा कि इकोनॉमी स्ट्रक्चर का चलते रहना। पिछले 3 महीने में इस प्रकार की स्थिति हमारे देश में आ गई थी कि तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो बंद होने के कगार पे थी, तमाम ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी व्यवस्थाएं नहीं चल पा रही थी। और आज आत्मनिर्भर भारत की मैं विशेष करके बात करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें आज के यूथ के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिली है। जिस प्रकार से हमारा हमेशा से एक परेशानी रही है भारत में कि फाइनेंस सिस्टम, जो लोन था उसमें गवर्नमेंट ने, अगर हम देखें तो छोटे एमएसएमई जो भी माइक्रो स्मॉल कंपनीज हैं, उनके लिए 50 से 60% तक का सब्सिडी गवर्नमेंट देने का काम कर रही है, ताकि वो क्वांटम थ्योरी की तरह उसमें अपलिफ्ट हो सके, उसमें क्वांटम ग्रोथ आ सके। साथ में आज हमको अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बेहद आवश्यक है। जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि अगर एक छोटा सा प्रोविजनल स्टोर भी है, जिस प्रकार से आजकल ऑनलाइन तमाम स्टोर्स आ गए हैं, क्योंकि आज इस स्थिति में सब लोग घर से बाहर निकलना नहीं भी चाह रहे हैं, तो हम किस प्रकार से मैकेनिज्म जो है वो टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व कर सके, जिससे कि हम ऑनलाइन डिलीवरी भी चीजों की कर सके। तो इस पे भी गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है और गवर्नमेंट ने इस पे भी काफी ध्यान दिया है। और जो चेन है, जो कोल्ड चेन है, या साथ में ऐसी तमाम क्षेत्र हैं जिसमें से लोगों की नौकरियां चलेंगी, लोग बेरोजगार भी हो गए। तो उस पे भी हम लोग को ध्यान देना है कि हम ऐसा किस प्रकार से इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। ऐसी आईटी कंपनी अमेरिका में जिस प्रकार से वीजा पे टेम्पररी रोक लगा दी गई है, तमाम लोगों को विदेश में जो काम कर रहे थे, जो इंडिया में रहते हुए फॉरेन कंट्रीज के लिए जो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों को भी आज अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है। तो किस प्रकार से आज का यूथ इसमें, इस कोविड काल में, इस महामारी के समय में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, उस पे भी विशेष करके हमको ध्यान देना चाहिए। जी। और तीसरा हिस्सा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी छोटे व्यापारी हैं, जो भी छोटे बिजनेसमैन हैं, वो किस प्रकार से, जो चूंकि हमारा देश सबसे युवा देश है, हमारी देश की 65% आबादी 30 साल से, लगभग करीबन 30 साल से कम एज की है। जी। और हमारे पास स्किल्ड लेबर्स की शुरू से रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी लाई गई, पीएमकेएसवाई, ताकि हम किस प्रकार से अनस्किल्ड लेबर को पीएमकेएसवाई के थ्रू स्किल्ड कर सके। तो हमको गवर्नमेंट को इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कितने ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोल पाती है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा हमारे जनसंख्या का ऐसा है, युवाओं का, जो कि अनस्किल्ड है, जो कि अलग अलग क्षेत्र में आज चाइना अपने लोगों को स्किल्ड कर दी है, और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है चाइना। और स्किल्ड लेबर के थ्रू वो तमाम क्षेत्र में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। तो हमको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम देश के युवाओं को स्किल्ड
डेवलपमेंट कर सकते हैं और स्किल्ड उनको उनको स्किल्ड बना सकते हैं। तो मुझको लगता है कि हमको लोगों को स्किल ट्रेनिंग की जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको और बढ़ाने चाहिए और कुछ ऐसा भी प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिससे कि हम लोगों को छोटी-छोटी बहुत सी छोटी-छोटी चीजों के बारे में भी बता सके, सिखा सके और स्किल्ड उनको कर सके। जी, जी। शक्ति जी, आपने एमएसएमई की बात की थी जो गवर्नमेंट की तरफ से ये बूस्ट आया है, तो वो बहुत ही वेलकमिंग मूव था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मैं यहाँ पे ये हाइलाइट करना चाहूँगी कि एमएसएमई जो है वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कवर करता है। लेकिन हमारे देश में एक बहुत परसेंटेज लोग हैं जो स्मॉल स्केल बिज़नेसमैन हैं, जो ये जो सप्लाई चेन होता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स बोल लीजिए, सीएनएफ एजेंट्स बोल लीजिए, ये जो स्मॉल ट्रेडर्स बोल लीजिए इनका, तो इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि इनके लिए स्पेशली ऐसा जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज आया है, इनके लिए अपार्ट फ्रॉम द लोन एक्सटेंशन जो खाली एक्स्ट्रा लोन उनको मिल रहा है वो 20%, उसके अलावा कोई एक बूस्टिंग मेजर नहीं आया है। ये बहुत लोगों से हमें सुनने मिला है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ट्रेडिंग में या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रांसपोर्टेशन में एंगेज्ड है इन ये स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन जो एमएसएमई कैटेगरी के अंडर टेक्निकली नहीं फॉल करते। तो उनके लिए क्या मदद हो सकती है? जैसा कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी जो सब ये सारी चीजें जो है वो सप्लाई चेन से रिलेटेड है। जी, मैन्युफैक्चर अगर कंज्यूमर किसी चीज को लेता है तो उसकी सबसे पहली नीड होती है कि वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो। जी। मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी सप्लाई हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो, फिर उस रिटेलर के पास है और रिटेलर के पास वो कंज्यूमर के पास जाता है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि अगर हमें हमारी कंट्री हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रही है। जहां तक कि आपको देखने को मिलेगा कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे हम चाइना पे आधारित रहते हैं। हुँ, चाइना पे हम आधारित थे तमाम चाहे वो गैजेट्स की आप बात कर लीजिए, चाहे बहुत छोटी-छोटी डेकोरेटिव आइटम्स की आप बात कर लीजिए, डेकोरेटिव आइटम्स की। हुँ, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी और मैन्युफैक्चरिंग में अगर बूम आएगा, तो उसके पैरेलली सप्लाई चेन में और तमाम रोजगार जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं उसमें भी बूम आएगा, उस वो भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारी कंट्री में अगर बढ़ती है तो उसके साथ-साथ पैरेलली इसमें भी ग्रोथ आएगा और साथ ही फिर मैन्युफैक्चरिंग अगर होती है तो इसमें फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और तमाम युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा। जी, जी। हमारे दर्शकों का एक ये भी क्वेश्चन है कि आपकी जो जर्नी रही है अभी तक, आप काफ़ी एक्टिव रहे हो इन सब चीज़ों में, आप एक्टिविस्ट रहे हो सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ में। तो आपका क्या अनुभव रहा है जब से ये महामारी शुरू हुई है फ़रवरी, मार्च से? तो आपने या आपके ऑर्गनाइज़ेशन ने क्या स्टेप्स लिया है? आपका क्या अनुभव रहा है इसमें? मतलब टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कोविड-19? हम लोग हमेशा से सुना करते थे कि मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम लोग ऐसी आपदा हमने कभी सोची भी नहीं थी कि किस प्रकार की भी आपदा आ जाएगी जी। और प्लेग के बारे में सुना करते थे और पढ़ा करते थे कि प्लेग एक महामारी थी और इस प्रकार से आई और हम प्रत्यक्ष रूप से आज उसको देख पा रहे हैं। हुँ, मैं बताना चाहूँगा कि एक्टिविज़्म में और हमारी ऑर्गनाइज़ेशन ने लगातार काम किया है। चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स को उनके घर तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हो और ये बड़ा मेरा एक बेकार अनुभव रहा कि हम लोग दिल्ली में थे और हमारा एक्टिविज़्म चल रहा था। ये सही मायने में तमाम ऐसी झुग्गियाँ हैं, तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों के पास खाने तक की व्यवस्थाएँ खत्म हो चुकी थी। चाहे वो छोटे-छोटे वो रिक्शा चलाने वाले थे, चूँकि लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। हुँ, चाहे फैक्ट्रीज़ बंद हो गई थी, चाहे सारी इंडस्ट्रीज़ लॉकडाउन थी और ऐसी बहुत बड़ी एक आबादी है जो रोज़ कमाती है और रोज़ खाती है। डेली जी, वेज डेली वेजेस सिस्टम पे काम करते हैं और इसमें हमारे ऑर्गनाइज़ेशन के साथ-साथ तमाम एनजीओ सामने आए निकल के। ये देखने को बहुत अच्छी चीज़ मिली कि पहली बार मुझको लगा कि लोग
पॉलिटिकल पार्टीज और अलग-अलग माइंडसेट से अलग-अलग जितनी डाइवर्सिटी थी उस सबके बावजूद भी जो हमारा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमने साक्षात देखा। लोग सारी चीजों को साइड करते हुए लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए बाहर आए। तो एक चीज जो हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, जो हमारे अंदर मोरल्स हैं, जो एथिक्स हैं, ये चीज हमको देखने को मिला कि लोग एक दूसरे के साथ मदद करने के लिए खुद से इनिशिएट कर रहे हैं और खुद से बाहर आ रहे हैं। तो ये चीज काफी अच्छा रहा। और एक्टिविज्म में हम लोग शुरू से जो भी समस्याएं रही हैं, जो भी समस्याएं किसी भी क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र से आई हैं लोगों के सामने, उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद करने का काम किया। और इस आपदा में भी हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि एक-एक छात्र की, एक-एक स्टूडेंट्स की, एक-एक किसी भी वर्ग से कोई भी आए उसकी मदद कर सकें। तो अनुभव तो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन हमने प्रयास किया कि किस प्रकार से हम लोग मदद कर सकते हैं इसमें। जी, और ये प्रयास ही है जो हम सबको एकजुट होकर हमें करना चाहिए। और मुझे आपसे एक और सवाल करना था, क्योंकि आपने माइग्रेंट वर्कर्स की बात की। आज हमें पता है कि एक भारी पॉपुलेशन, उनको कितनी दिक्कत हुई अपने घर तक जाने तक, और क्या हो रहा था हम सब देख ही रहे थे सारे न्यूज़ चैनल्स में और रास्तों में हमने देखा है खुद। अब लेकिन एक सिचुएशन एक ऐसी आ गई है कि अब जब सब वो अपने घर जा चुके हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारे नॉर्थ स्टेट से, अब बिहार या यूपी या बंगाल के थे, अब वो वहाँ जा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब, क्योंकि उन्हें इतनी दिक्कत हुई है, इतनी उन्हें परेशानी हुई है, क्या वो वापस उस इंडस्ट्रीज में जाना चाहेंगे जो लॉकडाउन के टाइम पे उन्हें सहायता नहीं मिली? और अगर मतलब अगर वो नहीं गए, तो ये जो 2, 3, 4 स्टेट्स हैं, ये ओवर पॉपुलेटेड हो जाएँगे वर्कफ़ोर्स से, और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है, से साउथ इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ है, वो लोग लैक करेंगे मेजर वर्कफ़ोर्स, इनफॉर्मल सेक्टर का या डेली वेज वर्कर्स का या इन माइग्रेंट वर्कर्स का। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आगे? मतलब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए या उनका क्या होना चाहिए? क्या उनको आप ये सुझाव देंगे कि उन्हें वापस इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट हेल्प करेगी उनकी? कोई लेबर लॉज़ या कोई प्रोटेक्शन उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगी जो पहले शायद नहीं थी? या उन्हें अपने घर में रह के कुछ लोकली कुछ करना चाहिए? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी इस पे बताना चाहूँगा। हुँ, जब माइग्रेशन हो रहा था, जब यहाँ से लोग जा रहे थे, तो तमाम हम लोग, चूँकि मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं नॉन दिल्ली, मैं दिल्ली का नहीं रहने वाला हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तमाम चूँकि पूर्वांचल हमारे यहाँ का एक क्षेत्र है, वहाँ से मैं आता हूँ। तो तमाम ऐसे और जो भी दिल्ली में वर्कर्स हैं, वो यूपी, बिहार से ही मैक्सिमम यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तब जो छात्र हैं। जी। तो छात्रों का विषय लेकर मैंने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे हमारी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, मनोज तिवारी जी, मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे मैंने बात की। और तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने उसके 2 दिन पहले उनके पास भी तमाम ऐसे लोग आ रहे थे जो कि यूपी, बिहार के रहने वाले थे, और उनको घर वापस जाने की, मतलब अब वो तो ज़ाहिर-सी बात है, जब परेशानी आती है तो लोग अपने घर की तरफ ही देखते हैं। और वो परेशानी में थे, और जिस प्रकार की यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ में जो सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, तो लोग उनका वेजेस, डेली वेजेस भी, सारी चीज़ें, सुविधाएँ उनकी बंद हो गई थी। तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की थी इस विषय को लेके, तो उन्होंने कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिमोटिवेट कर सकते हैं लेबर्स को, उसमें हमारा मुख्य रूप से हमारा प्रयास ये होना चाहिए, क्योंकि ये विषय पहले भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि अगर यहाँ से सब लेबर वापस चले जाएँगे, तो जब ये लॉकडाउन की स्थिति, जब स्थिति सुधरेगी और जब खुलेगी, तो ये जो इंडस्ट्रीज़ जो इनके दम पे चल रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रही हैं तमाम क्षेत्र में, जी, वो सब धरी की धरी रह जाएँगी, पहले की तरह उसमें भी काम नहीं होगा। तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों को डिमोटिवेट करने का भी काम किया कि नहीं, आप लोग जहाँ हैं वहीं रहिए, और जहाँ रहेंगे आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप एक तरीके से कैरियर का भी काम कर रहे हैं। आप यहाँ से आप गाँव की तरफ जा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं अगर या तो वहाँ पे किसी को इन्फेक्शन है, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, या तो आप ले जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं। करेक्ट। आज ये चैलेंज हम सबके सामने है, हमको देखने को मिल रहा है। आज
कल की मैं आपको न्यूज बताता हूँ। कल यूपी गवर्नमेंट की कल कॉन्फ्रेंस हुई है। उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि 30 लाख लोगों को यूपी गवर्नमेंट रोजगार देगी, लेकिन वो 30 लाख लोग किसी ना किसी इंडस्ट्री में के एम्प्लॉय थे। जी जी तो जाहिर सी बात है, जो पहले से जो सिस्टम रन करता आ रहा है उसमें काफी स्लो डाउन भी होगा इसके बाद। और अभी कल ही की रिपोर्ट थी, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ रहा था कि जब ये आने वाले 2 साल में हमारी जो जीडीपी है वो 2.5% तक डाउन भी हो सकती है। तो मुझको लगता है कि इसका दुष्प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। जो पहले से जो सिस्टम चल रहा था उसमें वो सिस्टम स्लो हुआ है, और आगे में स्लो होगा, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष रूप से वहां के लोगों में भी हमारी एक्टिविटी चालू है। तो जी बहुत से लोग आना नहीं चाहते हैं वापस शहर की तरफ, जी और मुझको लगता है नॉर्मल सिचुएशन आने में अभी समय लगेगा। जी। शक्ति जी, हमारे के एम्बेसडर भी ज्वाइन किए हैं, और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी प्रोफाइल देखी है और वो आपकी जर्नी जानना चाहेंगे एज अ स्टूडेंट लीडर एंड एज अ पॉलिटिशियन। मतलब आपकी क्या जर्नी रही है, आपका क्या अनुभव रहा है? मैं शुरू से बताता हूँ, चूंकि मेरी स्कूलिंग नैनीताल से हुई है। नैनीताल में बिरला विद्या मंदिर से। और मेरी ग्रेजुएशन हुआ है पुणे एमआईटी से, और कॉमर्स में विद कॉर्पोरेट लॉ। 2016 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होता है, और तब तक मैं सोशली एक्टिव नहीं था। लेकिन 2016 में यहाँ आने के बाद ड्यू की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो जिसमें मुझे लगा कि इसमें चेंज आना चाहिए। और यहाँ पे एक लोकल आउटसाइडर वर्सेस लोकल एक हमेशा एक विवाद रहता था। तो आउटसाइडर में अराउंड 25 ईयर से कोई बाहर का व्यक्ति, कोई प्रवासी छात्र कभी छात्र संघ में नहीं आया था, कभी यूनियन में नहीं आया था। तो चूंकि प्रवासी छात्रों की आवाज कभी कोई उठाने वाला था नहीं। जी जी तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा अखिल भारत एबीवीपी के साथ जुड़ना हुआ, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते करते स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन में हम लोग एक्टिव हुए। और मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा वोटों से मैं इलेक्शन जीता। अराउंड 9000 वोट का मार्जिन था। और इलेक्शन जीतने के बाद जो मेरे विशेष करके जो मैं 3 चीज हमेशा मैं बताना चाहूंगा। एक, पहली बार दूसू ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम किया। अच्छा। क्योंकि जब हम लोग छात्र संघ अध्यक्ष थे तो हम लोग को तमाम ऐसे छात्र अलग अलग क्षेत्र से आते थे, वो जो कि मानसिक रूप से बहुत सक्षम थे आगे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आर्थिक रूप से इतने कमजोर थे कि उनके पास फीस देने को भी पैसे नहीं होते थे, और उनका एडमिशन एसआरसीसी में और हिंदू कॉलेज में वो एलिजिबल रहते थे। तो हमने देश के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को और सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिल्ली के ने पत्र लिखा, और पत्र लिख के हमने पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया। हमने 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी लेने को सभी मिनिस्टर से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हमने कहा, और काफी लोग सामने आए मदद करने के लिए। और हम लोग 50 बच्चों को आज पूरी शिक्षा हम लोग स्कॉलरशिप दिए, और वो आज अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हैं। दूसरा विषय ये था कि हम हमेशा से प्रवासी छात्रों के मुद्दों को लेके हमने हमेशा संघर्ष किया है। और यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल 1% से भी कम छात्रों के लिए है। एजुकेशन में सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। यहाँ के लॉ फैकल्टी की फीस पूरे वर्ष की 5000 है। लेकिन अगर पीजी की आप बात करें, हॉस्टल्स की बात करें, तो 5-10 हजार पर मंथ की फीस है। तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमने यूपी की गवर्नमेंट से, यूपी की सीएम से, जो कि योगी आदित्यनाथ जी हैं,
मुझे बताने में बहुत खुशी होगी कि मैंने उनको हॉस्टल का प्रपोजल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ले जाके दिया और उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया, सैंक्शन कर दिया 49 करोड़ रुपीस। तो मेरे छात्र संघ रहने में ये कुछ काम है जो बहुत मुझको लगते हैं कि तमाम काम हुए, लेकिन ये जो 2 काम हुए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ नहीं सुना जाता था। हमने मतलब इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर भी अलग-अलग क्षेत्रों से हमने आर्थिक रूप से मदद ली और यहाँ के छात्रों की मदद करने का पूरा प्रयास किया। यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट से मैंने दिव्यांग छात्रों के लिए हमने 2 बस भी दिलवाने का काम किया। तो ये 2-3 काम रहे हैं जो पहली बार हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में और उसमें मेरा थोड़ा-सा योगदान है, इसलिए हम मानते हैं कि हमारी एक्टिविटी और एक्टिविज़्म अच्छा रहा मेरे कार्यकाल के दौरान। जी, जी। थैंक यू। और ये मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आपका ये प्रयास रहे और लोगों को मदद मिले आपकी तरफ से। आपसे मैं एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ कि आपका यूथ ऑफ इंडिया एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन और सारे जो अभी देख रहे हैं आपको यूथ यंगस्टर्स जो हैं, उनके लिए क्या मैसेज है कि उनका क्या रोल है इस स्थिति में, इस महामारी में? आज सबसे युवा देश है हमारी आबादी का जैसा बताया कि लगभग 70% तक हिस्सा है ऐसा है जो जिसकी उम्र एज 30 साल तक है। तो आज पूरी दुनिया की नजर हम पे है। जी, सबसे युवा देश है और जैसा कि इस महामारी से सबसे कम कोई इन्फेक्टेड हो सकता है, जैसा कि हम इटली में देखें कि वहाँ का एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनकी एज ग्रुप यूएस में आप देख लीजिए जिनकी एज एबव 50 ईयर है, लेकिन हमारा देश आज सबसे युवा देश कहा जाता है और सबसे युवा देश है। तो आज हमारी तरफ पूरी दुनिया आशा की नजर से देख रही है और आज इस आपदा को भी किस प्रकार से हम लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पे विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से आज पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। पूरे विश्व में हम जो कि एमएसएमई की बात हुई है, जो भी आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है, हम किस प्रकार से ऐसी चेन बना सके कि हम हमेशा से कंज्यूमर की जगह हम मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करें। अभी तक हम दूसरे कंट्रीज से हमारा अराउंड 30% जो इंपोर्ट होता था वो चाइना से हो रहा था। तो हम किस प्रकार से इन सब चीजों को अपॉर्चुनिटी में बदलें। आज दुनिया की बहुत सी कंपनियां हैं जो चाइना से माइग्रेट होकर इंडिया में आना चाहती हैं, तो उसमें हम क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं, इसका विशेषकर हमको ध्यान देना चाहिए। और मेरा एक विशेष आग्रह रहेगा कि आप लोग इस लॉकडाउन में जरूर, अगर आप लोग के पास आज मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है, आप योगा को में अपना जरूर योग की तरफ देखें और अगर आप योग अभी तक नहीं कर रहे हैं तो योग करना जरूर शुरू करें। थैंक यू शक्ति जी, थैंक यू आपका वक्त निकालने के लिए और इस सेशन में आने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपको हम बार-बार मिलते रहें। एंड बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुशांत की वजह से आपसे जुड़ना हुआ। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे भी हम ज़रूर मिलेंगे। जी, बिल्कुल। थैंक थैंक यू। यू।